آپ بہت بدماشی کر رہے ہیں, آپ بہت زیادہ ہی جناب والا بدماشی سب کو دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. جناب والا نہیں, اسی پہ بات کریں گے سر. نہیں وہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی کریں گے بالکل, بگٹی صاحب کو بھی اس پہ موقع ملے گا, میرے دوست بھی اس پہ بات کریں گے. نہیں آپ کیا کسٹوڈین ہیں؟ آپ کسٹوڈین ہیں؟ میں کسٹوڈین نہیں ہوں. کم از کم کس طرح آپ اجازت دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی بات کریں گے. 15 ڈسٹرکٹ ثنا بلوچ صاحب آپ ہاؤس کا وہ کریں. 15 ڈسٹرکٹ پہ نہیں آپ یہاں پہ بدماشی کر رہے ہیں. اسی 600 آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہی ہیں؟ توجہ دلاؤ نوٹس میں. نہیں توجہ دلاؤ نوٹس کا آپ نے رول نہیں پڑھا ہے. جناب والا سوال کر سکتے ہیں, وہی جو سپنل آیا ہے. ایک امپورٹنٹ کوشچن پہ ہم سب نے بات نہیں کی. آج بلوچستان کی تقسیم کرنے کی بات دانستہ سوال تھا نا, سرکار کی کاغذوں میں آ گیا ہے. سرکار آپ سب کچھ جانتے ہوئے چیزوں کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. بلوچستان کو بھوک اور پیاس سے لوگ مر رہے ہیں. بلوچستان میں 40 اسکیمات بنا کر 600 ارب روپے کسی کو بھی پتا نہیں ہے تو کرنے کی درخواست کی ہے. آیا رخصت منظور کی جائے. حاجی محمد نواز خان کاکڑ صاحب نے نجی مشرفیات کی بنا آج کی نشست میں رخصت کرنے سے درخواست منظور. آیا رخصت منظور کی جائے. مکی شام لال صاحب نے ناسازی طبیعت کی بنا آج کی نشست میں رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. آیا رخصت منظور کی جائے. جناب ٹاٹر جانسن صاحب نے نجی مشرفیات کی بنا آج کی نشست سے رخصت. میں وزیر برائے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرواتا ہوں کہ جنوبی بلوچستان کن اضلاع پر مشتمل ہے, اور کیا یہ فیصلہ یعنی جنوبی بلوچستان کا فیصلہ کسی صوبائی اسمبلی یا کسی قانونی فورم پر کیا گیا ہے. نیز بلوچستان کے جن اضلاع میں 600 روپے کے ترقیاتی اسکیم رکھے گئے ہیں, اس کی منظوری کس فورم پر لی گئی ہے, ان اسکیمات کی مکمل تفصیلات فراہم کریں. جی وزیر برائے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات توجہ دلاؤ نوٹس کی بابت وضاحت. کہ ظہور صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی باتیں میرے تو سر سے گزر گئیں, اب جنرل پبلک کو پتہ نہیں اس پہ کیا سمجھ آئے گا. میرا سوال بہت ہی مختصر تھا, اور اس کے پیچھے بالکل جو بات انہوں نے حقیقتاً کی, کچھ حقائق ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے, آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوگا. میں اس لیے ریفر کر دیا تھا, میں نے اس میں جو سوال کیا ہے قانونی اور آئینی فورم. جناب والا اپنے آئین کا صفحہ نمبر کھولیں, اس کو کہتے ہیں صفحہ نمبر 3. آئین شروع یہیں سے ہوتا ہے, باقی اس سے پہلے ٹیبل آف کنٹینٹ ہے, ابتدائیہ ہے. آئین کا حصہ اول جہاں سے آئین شروع ہوتا ہے اس کے حصہ اول میں نیچے آئیں گے لفظ ہے ابتدائیہ. اس کے بعد ہے آرٹیکل 1, اس میں پاکستان کا نام ہے. مملکت کیا ہے؟ مملکت پاکستان. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اہم چیز آ جاتی ہے دوسری, وہ یہ ہیں پاکستان کے علاقے جات. یعنی آئین میں جب کسی چیز کی علاقوں کی اتنی اہمیت حاصل ہے, اور جب وہاں پر ان کو آئین کے اندر سب سے پہلے لفظ پاکستان اور اس کی مملکت کی اسلامی حیثیت, اور اس کے بعد علاقہ جات کی جو ہے تشریح کی گئی ہو, وہ کیا ہے جناب والا؟ پاکستان کے علاقے مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوں گے. صوبہ جات بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ. دیٹس اٹ. اس کے بعد فل اسٹاپ. اس کے بعد آتے ہیں باقی آپ کے, یہ آپ کے اہم ہیں. پھر جز بے میں آ جاتا ہے آپ کے فیڈرل کا ٹیریٹری ہے, پھر آپ کے ناردرن ایریاز ہیں. کوئی بھی جناب والا ان کو کہیں کہ تھوڑی سی صبر پیشنٹ سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. جب کانسٹیٹیوشن کے اندر علاقوں کی بالکل واضح تشریح دی گئی ہو, تو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں نارتھ ساؤتھ, یہ جو ہم نے KPK کا نام کیوں تبدیل کیا NWFP کا؟ اس لیے کہ وہ بھی یہی تھا کہ شمال مغربی مشرقی صوبہ, اس میں بھی کوئی وضاحت نہیں تھی, بس شمال پہ ہے ہمارے, بلوچستان کے جنوب پہ ہے. اس لیے جناب والا 50 سال لگے, اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی تاکہ جناب والا وہاں پر. اس میں کیا جناب اسپیکر, مجھے اگر آپ پوری سنیں پھر اس کو آپ کنٹیکسٹ سمجھ آئیں گے کہ ادھر ہم بحیثیت لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہے, جب لوگوں میں جاتے ہیں. نہیں آپ بیان کریں نا. اچھا, اس کے بعد جب آپ کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ بناتے ہیں, جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں, جب آپ کوئی پروپوزل بناتے ہیں, گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ جو بھی آپ کے ڈیمارکیٹڈ, کانسٹیٹیوشنلی ڈیمارکیٹڈ آپ کے پروونسز ہیں, آپ کے ڈویژنز ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں, اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے.
फिर आर्टिकल आ जाता है आइन का आर्टिकल 6, मैं इसलिए इसके साथ रिलेट कर रहा हूं, वहां पर यह बात की गई है। आइन का आर्टिकल 6 कहता है कि आइन में न सिर्फ आइन की तनसीख, अगर आइन में कोई तखरीबकारी करे, यानी आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म किसको कहते हैं जनाबे वाला? यहीं से शुरुआत होती है उसकी। जब आपके पास बलोचिस्तान की एक वाज़ेह शिनाख्त है, जब आपके पास 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, जब आपके यहां नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड आपके पास फिर आप एक डेवलपमेंट पैकेज अगर किसी को देना चाहते हैं, व्हाट आर द बेसिस? आप सोशियो इकोनॉमिक बेसिस हैं, स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं उसकी, वो बेसिस को आप डिफाइन करके इस फोरम पे जनाबे वाला नहीं, उसका मतलब ये कि साउथ का अपने नाम जनाबे वाला मेरी जनाब स्पीकर साहब, अगर आप भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ। और फिर दूसरी बात ये है सनाउल्लाह साहब, मेरे ख्याल में इस चीज पे मुझे मेरी बात कहीं पे अगर वो है ना, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पहले आप भी मुझे सुने, चीजें पहले आप भी करने दें, पहले आप भी मुझे सुने, मैं इस पे कंक्लूजन पे भी आता हूं, गलती कहां पे हुई। फिर मैं आता हूं कि जो लफ्ज आपका मतलब है कि नया नाम साउथ दिया, ये सही नहीं? जनाबे वाला बात तो सुनने दे, अब इस तरह तो नहीं होता ना। साहब इतना लंबा, कम से कम एज ए कस्टोडियन सुने और आप समझेंगे। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं जनाबे वाला। इवन टू द पॉइंट नहीं आते, आप इतना लंबा इसको ले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि रोजे में कहां से शुरू किया, कहां खत्म। इंस्टेंस जनाबे वाला, फॉर इंस्टेंस ये जुनूबी बलोचिस्तान है, आप स्पीकर हैं, मैंने इस फोरम में, इससे बड़ी बलोचिस्तान का कोई फोरम है, मैंने कहा उसमें कौन से अजला शामिल है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना बलोचिस्तान के किसी और शख्स को पता है। जो बातें ज़हूर साहब ने यहां पर की, मेरे दोस्त ने। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि जुनूबी बलोचिस्तान, तो जुनूबी बलोचिस्तान के अजला तो आप डिफाइन करें कौन से हैं। जो अजला आम बलोचिस्तानी को अभी तक पता नहीं है, जो अजला इन्होंने डिफाइन किए हैं, वो भी पाकिस्तान के जो भी हमारे जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल जोन के मुताबिक वो जुनूब में नहीं पड़ते हैं, वो जुनूब मगरब में पड़ते हैं। इवन अगर उनकी गलती भी पकड़ी जाए, 4 मिनट के लिए कहें कि जी इंटेंशन बुरे नहीं है, कोई बलोचिस्तान को अलग नहीं किया जा रहा है, मैं आपको यह भी बताना देना चाहता हूं कि आपने लसबेला से लेकर ले आए, अगर आप हारान तक को भी शामिल कर लें उसमें, आपने इसमें बहुत बड़ी गलती की है। ये सिर्फ जुनूबी बलोचिस्तान बनता ही नहीं है। हमने जनाबे वाला यहां पर तकरीबन 30-40 साल सियासत की है बलोचिस्तान के नाम को बचाने के लिए। हमने कभी जुनाबी, शुमाली, कभी बलोचिस्तान की तकसीम के हवाले से जिसने भी कोई भी इस तरह की सोच पैदा हुई है, हमने इसकी हमेशा हर फोरम पे मजम्मत की है। अगर आपके पास, मेरे दोस्त ने, मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं आता हूं इसके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि जी नर्सिंग कॉलेज भी इसमें शामिल है, यूथ डेवलपमेंट कैपेसिटी भी शामिल है, ये सारे पीएचडीपी के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। हवाई फायरिंग नहीं होती है। अगर वजीर आजम इस मुल्क का कहता है कि 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, ये फोरम यहां पर बैठे मुंतखब नुमाइंदों को यह हक नहीं है कि उन तमाम स्कीमात को देखें, उन तमाम स्कीमात को मंजूरी दें। हमारा 80 अरब रुपए का जो है पीएचडीपी है, 100 अरब रुपए का पीएचडीपी है, 101 अरब रुपए का खसारा है। हर साल यहां पर उसको पेश करते हैं, यहां से उसकी अप्रूवल लेते हैं। यह कैसा बलोचिस्तान है कि जिसकी असेंबली को यह मालूम नहीं है कि 600 अरब रुपए का पैकेज बन रहा है, और यहां पर हम सारे जो है खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। कोई कहता है नर्सिंग कॉलेज इसमें बनेगा, कोई कहता है खारान यकमच रोड बन रहा है। खारान यकमच रोड 6 साल पहले की एनएचए की स्कीम में, यह कहां से साउथ बलोचिस्तान के पैकेज में आया? खारान में नर्सिंग कॉलेज 3 साल पहले की पीएचडीपी में हमने डलवाया। अब मैं आता हूं जनाबे वाला इसकी दूसरे एस्पेक्टिव पर। हां, हम बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करते हैं जनाबे वाला, हम इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि बलूचिस्तान के जो जंग ज़दा इलाके हैं, 2003 के बाद बलूचिस्तान में जो शोरिश, बलूचिस्तान का जो इस्लामाबाद के साथ तनाज़ा है, उस तनाज़ात को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान के बहुत से अजला हैं जो पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे रह गए हैं। ज़हूर साहब, ये बलूचिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंपोनेंट्स है जी। आवारान से लेकर जनाबे वाला, आवारान बदकिस्मती है, शूमी किस्मती है, शर्म का मुकाम है हम बलोचिस्तानियों के लिए कि दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और पाकिस्तान में आवारान सबसे आखिर पर है, और खरान भी इसी तरह, वाशुक भी इसी तरह, खेच भी इसी तरह, अरनाई भी इसी तरह, किला अब्दुल्ला भी इसी तरह, जोब भी इसी तरह, डेरा बुक्टी जनाबे वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आवारान से सिर्फ दो जो है इशारिये जो है वो ऊपर है। अगर आपने कोई पैकेज बनाया है, 600 अरब रुपए हैं, आप इसकी ओनरशिप चाहिए, आपको इसकी लेजिटिमेसी चाहिए। आप समझते हैं ये कि बलूचिस्तान का सोशियो इकोनॉमिक पैकेज है या स्ट्रेटेजिक पैकेज है? अगर ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो जनाबे वाला आपने
कौन सा सर्वे करवाया है, जरूरियात किस जगह पे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या जनाबे वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसमें जनाबे वाला, आपका डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड्स है इसमें जनाबे वाला, आपका जो है नॉलेज है यानी उसमें एजुकेशन है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपने किस फोरम पर कोई इस तरह की सर जनाब आखिरी नहीं, आप जनाब स्पीकर आ रहा आप बहस नहीं कर सकते, आप मैं तजवीज भी दे रहा हूं, नोटिस दे रहे हैं जनाब स्पीकर। आपने दे दिया, मिनिस्टर ने जवाब दिया, अब इस पे वो नहीं होता है मिनिस्टर जनाब वाला मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, आप मुतमैन है जनूबी बलूचिस्तान से? जनाब वाला बैठ जाए, आप बात तो सुने, आप जो रिक्वायरमेंट है आइन का वो उस पे जाना पड़ेगा, इस तरह नहीं है कि आप कहेंगे और हम सारा दिन सुनते रहेंगे। हमने देखे जनाब नहीं है वो, फिर आपको उसमें करारदाद लाए ना वाला, मैं जो चीज लाते हैं उसके मुताबिक चले। मैं 5 तजावीज यहाँ पर पेश कर रहा हूँ आपकी इजाजत से जनाब स्पीकर, 5 तजावीज। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जनसदा इलाके क्वेश्चन लाएं, बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट, ये क्वेश्चन नहीं, तवज्जो दिलाओ, इंपोर्टेंट नहीं भुट्टी साहब खड़े हैं, आपका नहीं कह रहा हूँ, यूबीसी पे बात करेंगे सर, नहीं वो नहीं कर सकते, मेरे भाई करेंगे बिल्कुल, बुक्टी साहब को भी इस पे मौका मिलेगा, मेरे दोस्त भी इस पे बात करेंगे। नहीं आप क्या कस्टोडियन है, आप कस्टोडियन है? मैं कस्टोडियन नहीं हूँ, कम से कम किस तरह आप इजाजत दे रहे हैं? आप कहते हैं वो भी बात करेंगे, 15 डिस्ट्रिक्ट साहब आप हाउस का वो करें, 15 डिस्ट्रिक्ट पे नहीं आप खर्च करने की बात हो रही है, यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, इसी 600 आप कैसे कह रहे हैं कि ये बात करेंगे? तवज्जो दिलाओ नोट्स वाला, नहीं तवज्जो दिलाओ नोट्स का आपने रूल नहीं पढ़ा है, जनाब वाला सवाल कर सकते हैं, वही जो इसने लाया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम सब ने बात नहीं की, आज बलूचिस्तान की तकसीम करने की बात दानिस्ता वो सवाल था ना, सरकार की कागजों में आ गया है, सरकार आप सब कुछ जानते हुए चीजों को खराब क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये है, वहाँ पे इलाकों में किसी भी हुकूमत को ये इजाजत नहीं कि 600 अरब रुपए इस असेंबली की इजाजत के बगैर खर्च करें। आपने तवज्जो दिलाओ नोटिस क्यों लाए? इसको सवाल पे लाते या करारदाद लाते? जी जनाब वाला तवज्जो दिलाओ नोटिस करारदाद, मेरी बात सुनिए जनाब स्पीकर, अगर नहीं इस तरह नहीं होता, आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ही जनाब वाला बदमाशी सबको दे रहे हैं, इस तरह नहीं होता जनाब वाला, नहीं अपना नहीं, आप जनाब वाला कम से कम आप ये अल्फाज न बोलें, अवारान की हालत देखकर कम से कम आपको ये अल्फाज बोलने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते, एज ए कस्टोडियन डिफेंड नहीं कर सकते जनाबे वाला, हम डिफेंड कर सकते हैं, हम अवारान का डिफेंड करेंगे, हम हारान को डिफेंड करेंगे जनाबे वाला जंग। अगर आप सही नहीं कर रहे हैं, नहीं नवाब मोहम्मद असलम खान रिसानी साहब ने बस सिलसिला इलाज कोयटा से बाहर जाने की बिना रवाई इजलास से रुखसत मंजूर करने की दरख्वास्त की है। आप भी काबिल एहतराम है, कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि आप लोग इस तरह तो नहीं करें। नहीं मर रहे हैं, यहाँ पर 600 अरब रुपए झूठ की बात हो रही है, लोग प्यास से मर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, आप बैठिए स्पीकर, आप इस पे डिबेट करवाएं, आप सरदार मोहम्मद साले बोतानी साहब के इजाजत से बाहर होने की बिना आज की नशस्त से जो जुनूबी बलूचिस्तान का यहाँ बहस के लिए पेश किया जाए, रुखसत मंजूर हुई। नवाबजादा तारिक मक्सी साहब कोयटा से बाहर होने की बिना आज की नशस्त में शिरकत करने से कासिर रहेंगे। रुखसत मंजूर हुई। सरदार यार मोहम्मद रीम साहब कोयटा से बाहर होने के भी कस्टोडियन है, रुखसत मंजूर किया। आप कस्टोडियन होते तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की बात हो रही है, बलूचिस्तान को भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, बलूचिस्तान में 40 कीमत बनाकर 600 अरब रुपए किसी को भी पता नहीं है, तुरबत में अगर खर्च नहीं होते तो जनाब वाला कल फजल की बात नहीं आती, रीम साहब कोयटा से बाहर होने की बिना हमारे आधे इलाके रुखसत मंजूर हुई। मुझे अफसोस जनाबे वाला सरफराज चाकर तुर्की साहब बैरून मुल्क जाने की बिना आज बलूचिस्तान से कासिर रहेंगे। ये बलूचिस्तान जमाली साहब कोयटा से बाहर होने की बिना आज की नशस्त में शिरकत करने से कासिर रहेंगे। आया रुखसत मंजूर की जाए, करें। मीर जाबिद अली रकी साहब ने कोयटा से बाहर होने की बिना आज की नशस्त में रुखसत मंजूर करने की दरख्वास्त की है। आया रुखसत मंजूर की जाए। हाजी मोहम्मद नवाज खान काकर साहब ने नजीम मुशर्रफ की बिना आज की नशस्त में रुखसत करने से दरख्वास्त मंजूर। आया रुखसत मंजूर की जाए। मुकी शामलाल साहब ने नासासी तबीयत की बिना आज की नशस्त में रुखसत मंजूर करने की दरख्वास्त की है।
آیا رخصت منظور کی جائے. رخصت جناب ٹاٹس جانسن صاحب نے نجی مصروفیات کی بنا آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. آیا رخصت منظور کی جائے. ڈاکٹر ربابہ خان ولیدی صاحبہ نجی مصروفیات کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گی. آیا رخصت منظور کی جائے. محترمہ مستورہ بی بی صاحبہ نے ناسازی طبیعت کی بنا آج کی نشست میں رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. رخصت منظور. محترمہ زبیدہ بی بی صاحبہ نے چچا صاحب کی فوتگی کی بنا رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے. آیا رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور ہوئی. نہیں اس طرح نہیں ہے. آپ سارے رولز خود بناتے اور وائلیٹ بھی خود کرتے ہو. بلوچستان کم سے کم اجرات کا مسودہ قانون مصدرہ 2021 مسودہ قانون نمبر 9 مصدرہ کدھر ہے؟ نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں. جناب اصغر علی صاحب جی منسٹر فائنانس صاحب آپ دیکھ لیں اس میں جناب اصغر علی ترین صاحب سے کی جانب سے تحریک التوا نمبر 1 موصول ہوئی ہے. قواعد نسبات کا اور مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 75(1) کے تحت تحریک التوا 1 پڑھ کر سناتا ہوں. تحریک یہ ہے کہ مورخہ 6 اپریل 2021 کو پشین سے تعلق رکھنے والے ایک جوان بلال احمد کو ان کے پیٹرول پر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. پہلے میں نے کہا پڑھ کے سناتا ہوں, آپ سنتے تو نہیں ہیں. تحریک یہ ہے کہ مورخہ 6 اپریل 2021 کو پشین سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان بلال